Assalamu alaikum. Welcome guys again for my YouTube channel. Uh, Thank you very much for watching my uh, videos on the regular basis. As you know that in our previous YouTube, actually we talked about the passive voice, but that topic was so lengthy that I could not complete all the methods of the passive voice in one video because I can't prolong so much the video. So that's the reason I have made the different parts. The previous part, that was part one. Now that is a part two. In our previous lecture, we talked about the passive voice of the indefinite tenses. Now today we are going to talk about the continuous tenses, and these are the different methods related to passive voice. Combinedly, we will talk about the present and the past. So for that purpose, before starting the video, I'd like to introduce myself. Muhammad Sajjad is my name, as you know very well that I am teaching in the Punjab College, and the basic purpose of my English lecture is just to teach, to guide the students of every type like MCAT, ECAT, FSC students, first year students, as well as the different students about those students who are doing their IELTS, even those students who are preparing for their CSS examination. The basic purpose of this channel, I would like to repeat, the basic purpose is that all those students who are feeling much difficulty in writing something and they are making again and again and they are committing again and again the mistakes in the grammar structure, our main target is to correct them. So please, without wasting time, come to the point. First of all, we talk about the present continuous tense. And then, for example, if we take the example of the present continuous, we can take that sentence, he is playing football. He is playing football. As you know very well कि हम लोग जो सिंपल सी बात है जो हम लोग करते हैं सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूँ ताकि तमाम किस्म के स्टूडेंट्स जो इसको अच्छी तरह समझ लें, वो बेशक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या मास्टर लेवल के हैं। सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा तो सब लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सो आपको पता है कि अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो उसमें इज, आर, एम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और साथ बाद में ऑब्जेक्ट और स्टार्ट में सब्जेक्ट लगता है। इसी तरह अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो हम वही वाला ट्रेडिशनल मेथड जो हम बार बार रिपीट कर चुके हैं कि तमाम टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके बाद हम नॉट लगाते हैं। मसलन ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम इज हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देते हैं और इज ही प्लेइंग फुटबॉल इस तरह सेंटेंस बना देते हैं। और अगर पास्ट की बात करें यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी मेथड है, ये मैं टेंसेस की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ और आई होप कि आपको इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू आर फीलिंग एनी मिस्टेक, then you can watch my video again, 12 tenses in one video. In that video you will clear all these concepts. uh, if we talk about the past indefinite, past continuous, here we see the helping verbs are he was playing football. was और वर्ब जो होते हैं वो उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं और हम इसी तरह बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है, कंटिन्यू होता है। मतलब सब्जेक्ट है, was वर्ब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी इन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं और फुटबॉल ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं यहाँ, और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। नेगेटिव के लिए was के बाद नॉट लगा देना है और इंट्रोगेटिव के लिए was को सब्जेक्ट के स्टार्ट में लगा देना है, पहले सेंटेंस के लगा देना है। तो ये था एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब अगर हम इनके पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना चाहें तो हेल्पिंग, याद रखने वाली बात है कि हेल्पिंग वर्ब अब दोबारा पैसिव वॉइस में वही यूज होते हैं, इज, आर, एम, और पास्ट में भी ऐसे यूज होते हैं वाज और वर। लेकिन फर्क ये आ जाता है स्टूडेंट्स, जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि चूंकि एक्टिव वॉइस में प्लेइंग कंटिन्यूटी शो करने के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, लिहाजा चूंकि हमने पैसिव वॉइस यूज करते हुए वो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किसी भी किस्म का पैसिव वॉइस हो तो फॉर्म हमेशा थर्ड लगाते हैं, लिहाजा ये थर्ड फॉर्म लगेगी। तो फिर आईएनजी कंटिन्यूटी शो करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि आईएनजी की जगह हम बिंग यूज कर लेंगे, आईएनजी को बिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और बाकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेम हो जाएंगे। मसलन आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एग्जांपल लेते हैं तो आप इसमें देखें ये आ जाता है इज, आर, एम और साथ बिंग आ जाता है।
ठीक है। और इसी तरह जब पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वो बन जाएगा वाज बार और साथ बिग आ जाएगा। ठीक हो गया जी। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कि पैसिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में इज आ रहे हैं प्रेजेंट में और वाज बार हेल्पिंग वो पास में लगता है, लेकिन जब हम इनके पैसिव वॉइस बनाते हैं तो साथ इनके आईएनजी की जगह बिग यूज कर लिया जाता है। बाकी वही वाले मेथड हैं कि टेंस फॉर्म हमेशा थर्ड पर्सन यूज होगी और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रोल में जो है वो यूज किया जाता है। अब अगर हम इनकी एग्जांपल के साथ डिस्कस करें तो ये आपके सामने एग्जांपल है। देखिए हम पहले प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब यहाँ हमारे पास है टेंस बनता है जो हमने लिया है एक्टिव वॉइस में, वो बनता है ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो अब ये फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा और इसका हेल्पिंग वर्ब सेम लगेगा, लेकिन प्लेइंग जो है ये प्लेइंग से हमने चूंकि थर्ड फॉर्म बनानी है वो प्लेड बन जाएगी, तो आईएनजी की जगह हमने बिंग यूज कर लेना है। सेंटेंस बन जाएगा फुटबॉल इज बिंग प्लेड बाय हिम, यानी इसके बाद बिंग आ गया। इसी तरह हम अगर नेगेटिव बनाना चाहें, देखें जिस तरह कि ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो नेगेटिव बनाने का एक ही तरीका एक ही मेथड जो है वो हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। और everybody knows that what is the method, because we are talking again and again about this negative interrogative method. And what is that? कि हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस का होता है उसके बाद नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है, और हेल्पिंग वर्ब को अगर हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो अब आप देख लें इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव में आप देख लें इज ही प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, और इसी तरह यहाँ भी वही सब्जेक्ट बन गया क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट जो फुटबॉल था वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, और इस शुरू में लगा देंगे और ये बन जाएगा इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। बीइंग को हमने सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है। कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि इसके बाद साथ बीइंग लगा देते हैं, वो ऐसे बना देते हैं इज बीइंग फुटबॉल, दैट वुड बी रॉन्ग। नाउ वी टॉक अबाउट द पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, अगर हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बात करते हैं वो बनता है ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मेथड सेम होगा, बस प्रेजेंट की तरह ही होगा, लेकिन इज आर की जगह अब वाज बार आ जाएगा। और वो कैसे बन जाएगा, फुटबॉल वाज, अब प्लेड की प्लेइंग की जगह प्लेड हो जाएगा तो आईएनजी की जगह हम बीइंग यूज करेंगे, ये सेंटेंस बन जाएगा फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। ठीक है जी, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। इसी तरह जब हम नेगेटिव बनाना चाहें तो ये सेंटेंस बन जाएगा कि ही वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये नेगेटिव बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस का। तो इसको कन्वर्ट करते हुए हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, फुटबॉल को स्टार्ट में लगा देंगे और फुटबॉल के साथ चूंकि सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा, वाज तो नहीं आएगा क्योंकि एक सिंगुलर के साथ वाज होता है और प्लूरल